Hello everyone and a very good afternoon to all of you. So today we will solve a new problem which name is daily temperatures, lead code 739 problem. So as you can see it's a medium level problem, but I will say it's not a medium level problem, it's a medium to harder problem because it's a tricky problem. Because if you know the concept of monotonic stack, then it will be easy for you. If you have done maybe many problems based on monotonic stack, then it will be easy. But if you don't know about what is monotonic stack and how we will use the monotonic stack, then it will be tricky for you. So in this video we will cover what is monotonic stack and how we will solve this problem using monotonic stack. So let's read the problem statement. So problem is saying that we have given an array of integers temperature represent the daily temperatures, written an array answer such that answer of I is the number of days you have to wait after the ith day to get a warmer temperature. Okay, if there is no future day, then which this is possible, keep answer of I equals to 0. So the problem is saying that let's take an example so that we can understand properly. So here we have given an array of temperatures 73, 74. There are some elements. Okay, so we have to find the warmer temperature. So in the at initial the temperature is 73. In next day as you can see, अगले ही दिन में टेम्परेचर कितना हो रहा है 74, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इफ ये जीरो इंडेक्स है और ये वन इंडेक्स है तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, वन का गैप है, तो यहाँ पर वन आ जाएगा। 74 के बाद अगले ही दिन 75 हो जा रहा है टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, फिर से वन हो जाएगा। 75 के बाद अगले दिन टेम्परेचर कितना रह रहा है 71, जो कि कम है। फिर से 69 है वो भी कम है, 72 है वो भी कम है, बट 76 ये ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है 76, 75 और 76 इन दोनों दिनों के बीच में। लाइक if we are starting from index 0, then this will be 0 1 2 3 4 5 6, 6 minus 2 which is equals to 4. So here we will return 4. So it's like that. Let's discuss about the approach for this problem. हाँ, as you can see we have given this array. सो हमको पता है कि आउटपुट हमें रिटर्न कैसे करता है कि हमें अगले ही दिन वार्मर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। मतलब अब 74 है, इनिशियल टेम्परेचर 73 है, सॉरी। सो अगले दिन 74 हो रहा है, अगले ही दिन हो रहा है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, वन है, तो वन रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी वन हो जाएगा, यहाँ पर इसके बीच में गैप कितना है, 4 डेज का गैप है, तो 4 रिटर्न हो जाएगा। 71 एंड देन 69 देन 72, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 है, तो 2 रिटर्न हो जाएगा। ऐसे हम आउटपुट को मेजर कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बट एज यू कैन सी कि है ना, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्लोजेस्ट देख रहे हैं, क्लोजेस्ट टू द राइट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस मींस हम लाइक इसमें कुछ फील आएगी आपको, इसको देख के कुछ फील आ रही है। क्लोजेस्ट नेबर ग्रेटर देन बी means I am at the index 0, my temperature is 71. If I will find the temperature greater than me, if I will find 72 in next index, so I will return 1 because next index is 1. I am at the index 0, so difference between the indexes will be 1, so 1 will be my answer. So it's like that कि closest neighbor greater than me और less than me और equal to me, इसमें ये हिंट है, ठीक है। ये हिंट होती है मोनोटोनिक स्टैक की कि यार मेरे को क्लोजेस्ट नेबर फाइंड करना है कि यार जो मुझसे बड़ा हो या मुझसे छोटा हो या मेरे इक्वल हो, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, मोनोटोनिक स्टैक, ये एक हिंट है, ठीक है। हम यहाँ पर भी यही चीज कर रहे हैं। इफ मैं अगर यहाँ पर इनिशियली टेम्परेचर मेरा 71 है, ठीक है, इफ माई टेम्परेचर इज 75, तो मैं देखूंगा कि यार मेरे 71 से ज्यादा कहाँ पर, कौन से इंडेक्स पर मिल रहा है, ठीक है। अगले पे 69 है, नहीं यार कम है मेरे से। अगले पर कितना है 72 है, हाँ ज्यादा है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है 2, तो 2 विल आई विल रिटर्न 2, सो 2 रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है। तो हम देख रहे हैं क्लोजेस्ट टू द राइट विच इज स्ट्रिक्टली वार्मर देन मी, वार्मर देन मी मींस वार्मर देन 71। सो स्ट्रिक्टली वार्मर देन 71 क्या हो गया 72। सो इन दोनों इंडेक्सेस के बीच में का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 2 हम रिटर्न कर देंगे। तो ये एक मोनोटोनिक स्टैक की हमें फील आ गई है कि हम मोनोटोनिक स्टैक कब यूज करेंगे। ये तीन कंडीशन है कि मेरे को जब क्लोजेस्ट नेबर फाइंड करना हो, ग्रेटर देन मी, इक्वल टू मी और लेस देन मी, तब मोनोटोनिक स्टैक यूज करते हैं। नाउ देखते हैं कि हाउ वी विल यूज द मोनोटोनिक स्टैक। सो या सो दिस इज द एरे जो कि हमें दे रखा है, ठीक है। वी हैव टू ट्रेवर्स द एरे फ्रॉम द बैक।
we will not traverse the array from the front, we will traverse the array from the back, because मोनोटोनिक स्टैक दो तरीके के होते हैं, या तो इंक्रीजिंग हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। अगर हम बैक से ट्रेवर्स करते हैं, देख बताऊंगा मैं बैक से ट्रेवर्स क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बताऊंगा। सो बैक पे ट्रेवर्स करेंगे तो इसको पढ़ो एक बार। ट्रेवर्स फ्रॉम द बैक एंड वी विल चेक इफ द कमिंग नंबर मीन्स, अब मैं पहले है ना 73 पर हूँ, इंडेक्स भी स्टोर करा रहा हूँ और नंबर भी स्टोर करा रहा हूँ, मतलब टेम्परेचर भी। क्यों स्टोर कर रहा हूँ, इंडेक्स इसलिए स्टोर करा रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइनली तो इंडेक्स ही रिटर्न करना है कि डिफरेंस कितना है। अगर मेरा 71 है टेम्परेचर, जीरो इंडेक्स पे हूँ, अगर नेक्स्ट वाला 1 इंडेक्स पे मेरा 74 मिल गया, तो इन दोनों इंडेक्स के बीच का डिफरेंस ही तो मेरे को रिटर्न कराना है। तो मेरे को इंडेक्स भी इंडेक्स का भी ट्रैक रखना पड़ेगा और टेम्परेचर के भी ट्रैक रखना पड़ेगा। तो मैं पहले देख रहा हूँ कि यार 73 पर 73 टेम्परेचर है मेरा 7 इंडेक्स पर, तो मैं इसको पुश कर दूंगा स्टैक के अंदर, ठीक है, इनिशियली मैंने पुश कर दिया। तब नेक्स्ट ही मेरे को क्या मिला, 76 मिल गया, 76 मिल गया, 76 मिल गया, तो मेरे को तो ये तो हायर हो गया। इफ द कमिंग टेम्परेचर इज हायर देन माई करंट टेम्परेचर, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, इफ माई अपकमिंग टेम्परेचर is higher than my current temperature, then what I will do, I will pop that element, pop that temperature, pop that current temperature, and I will push the new temperature। सो इसको 73 को पॉप कर देंगे, 76 को डाल देंगे। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं 69 के लिए देखूं मान लो, ठीक है, तो 69 के लिए देखूं तो यहाँ तो 72 मिल रहा है मान लो, ठीक है, इसको 72 के लिए देखते हैं मान लो, ठीक है। अगर हम 72 वाले के लिए देखते हैं कि यार 72 वाले के लिए 76 आंसर बढ़िया होगा या 73, 76 बढ़िया होगा, क्योंकि अगले ही आइट्रेशन में वो मिल जा रहा है, ठीक है, इस तुरंत ही मिल जा रहा है, तो 76 मिलेगा हमें तो 73 की तो नीड ही नहीं है, इसलिए हम बैक से ट्रेवर्स कर रहे हैं कि भाई हमें तो बार बार टेम्परेचर चाहिए, करंट टेम्परेचर से ज्यादा बार टेम्परेचर चाहिए जब भी मिल जाए, ठीक है, तो उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इस ये वाला मेरा करंट टेम्परेचर मान लो 72, तो मैं 76 देखूंगा ना, 76 मिल गया मुझे, तो मैं इसका इंडेक्स कितना 6, इसका इंडेक्स कितना 5, तो 6/5 विल बी माई आंसर, जो 1 रिटर्न कर देंगे। फिर 73 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि बैक से ट्रेवर्स कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यार अगर मेरा है ना अपकमिंग टेम्परेचर है करंट टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, तो मैं करंट टेम्परेचर को हटा दूंगा, अपकमिंग टेम्परेचर को हम पुश कर देंगे। तो मैं यही कर रहा हूँ कि 73 को हटा देंगे और 76 वाले को पुश कर देंगे। फिर मैं 72 वाला देखता हूँ, 72 वाले में देखते हैं कि यार 72 वाला तो कम है, ठीक है, कम है, तो इसको तो क्या करते हैं डायरेक्ट पुश कर देते हैं बस, ठीक है, हटाएंगे कुछ भी नहीं, डायरेक्ट पुश करते हैं। तो डायरेक्ट 72 वाले को पुश करेंगे, यहाँ पर मैंने कट कर दिया था कहीं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 72 वाले को मैंने पुश कर दिया, यहाँ देख लो 72 वाले को मैंने पुश कर दिया, और जो कि 5th इंडेक्स पर है। फिर 69 वाला, 69 भी कम है 72 से, कम है तो डायरेक्ट पुश करेंगे, ज्यादा होता है अपकमिंग एलिमेंट तो पॉप करके पुश करते, अब कम है तो डायरेक्ट पुश कर देंगे 69 को। फिर देखेंगे 71, 71 इज द हायर एलिमेंट, 71 is the higher temperature of my as compared to the my current temperature, so what I will do is I will pop this element, 69 को हम हटाएंगे, 69 को हटा दिया। फिर देखेंगे 72, 72 तो उससे ज्यादा है, तो अब क्या करेंगे, 72 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 71 को पुश कर देंगे, 71 को पुश कर दिया, ये पुश कर दिया। फिर मेरा देखा 75, 75 तो हायर है, हायर टेम्परेचर है, 75 हायर है, तो 70 वाले को हटाएंगे, हटा दिया 75 वाला। फिर देखिए 72 वाला भी उससे छोटा है, इसको भी हटाएंगे 72 वाले को और 75 वाले को पुश कर देंगे, ठीक है, पुश कर दिया। फिर 74 आया, 74 वाला तो छोटा है, तो डायरेक्ट पुश करेंगे, डायरेक्ट पुश कर दिया। फिर 73 आया, 73 भी छोटा है, तो 73 वाले को भी डायरेक्ट पुश कर दिया। बट इन सब के साथ साथ मैं क्या करता जा रहा हूँ कि मैं है ना जो मेरा आंसर वेक्टर बनाऊंगा, जो मैं आंसर वेक्टर बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा कि इंडेक्स का डिफरेंस भी स्टोर कराते जाऊंगा। वो हम कोड में देखेंगे कैसे स्टोर कराते जाऊंगा, मैंने लिखा नहीं है, बट वी विल स्टोर द डिफरेंस ऑफ द इंडेक्सेस। सो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, कोड करते हैं डायरेक्ट। सो फर्स्टली इनिशियलाइज कर लो फाइज को, इसको कॉपी कर देता हूँ जिससे बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है, टेम्परेचर्स डॉट साइज, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज हम स्टैक बनाएंगे, विल क्रिएट स्टैक जो कि एक पेयर टाइप का होगा। बिकॉज पेयर टाइप का क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट विल शो द टेम्परेचर एंड सेकंड विल शो द इंडेक्स। सो इंट कॉमा इंट विच नेम इज एस टी, तो ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ वेक्टर, वेक्टर क्यों, ये रिटर्न कराना है तो वेक्टर ही तो है,
तो इंट टाइप का वेक्टर बना लिया जिसका नाम क्या हो गया, आंसर हो गया, और उसका साइज इनिशियली कितना है n, और इनिशियलाइजिंग विद 0। आई एम इनिशियलाइजिंग विद 0। बाद में देखेंगे कुछ चेंज हुआ तो चेंज कर देंगे, ठीक है। नाउ मैंने बोला था कि बैक से ट्रेवर्स करना है, तो बैक से ट्रेवर्स करते हैं 4 इन आई इक्वल्स टू n माइनस 1 टू आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन आई माइनस माइनस, सॉरी, ठीक है, वो आई माइनस माइनस, हाँ, डन। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल चेक लाइक वाइल लूप लगाएंगे, और कब तक के लिए वाइल लूप कब काम करेगा, नॉट ऑफ एस डॉट एस टी डॉट एम टी, जब तक कि स्टेप एम्प्टी ना हो जाए, एंड जो मेरा टेम्परेचर, जो मेरा करंट है, लाइक एस टी डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, ये क्या शो कर रहा है, करंट वाला टेम्परेचर, ठीक है, जो स्टैक में पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वो वाला टेम्परेचर मेरा लेसर देन इक्वल्स टू करंट टेम्परेचर हो जाता है, करंट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर, इसको कॉपी कर लेते हैं इसको, तो टेम्परेचर ऑफ आई हो जाता है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या करूंगा, अगर मेरा जो करंट टेम्परेचर है, अपकमिंग टेम्परेचर, लाइक अपकमिंग टेम्परेचर जो कि हम डालने वाले हैं स्टैक में, जो if my upcoming temperature is greater than equals to my current temperature, then what I will do is I will pop the element from the stack, the top element from the stack, and I will push that upcoming temperature into the stack. So इसको कैसे लिखेंगे, एस टी डॉट पॉप, ठीक है, पॉप कर दिया, दोनों चीज टेम्परेचर भी और उसका इंडेक्स भी पेयर था, इसलिए दोनों ही एक साथ पॉप हो जाएंगे। नाउ व्हाट आई विल चेक इज व्हाइल इफ नॉट ऑफ एस टी डॉट एम्प्टी, जब तक कि एम्प्टी ना हो तब तक के लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने बोला था ना इंडेक्स का की ट्रैक रखना है मेरे को, तो आंसर ऑफ आई इक्वल टू, आंसर ऑफ आई क्या होगा मेरा, जो कि एस टी डॉट टॉप डॉट सेकेंड, ये क्या शो कर रहा है, मेरा इंडेक्स शो कर रहा है, ठीक है, माइनस आई, मतलब मैंने क्या बोला है, एस टी डॉट टॉप डॉट सेकेंड क्या हुआ, मेरा इंडेक्स ही हुआ, तो मेरा ये करंट इंडेक्स है, ये प्रीवियस इंडेक्स है, और अगर मेरे को हायर टेम्परेचर मिल जाता है तो मैं माइनस कर देता हूँ, वही चीज मैंने लिखी है, ठीक है। और फाइनली मेरे को हर एक एलिमेंट को पुश तो कराता ही जाना है वेक्टर में, तो एस टी डॉट पुश ऑफ, अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ आई, ठीक है, आई, और क्योंकि ये पेयर है तो आई इंडेक्स भी पुश कराना है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं, जाके जिससे दोनों पुश हो जाए, नहीं तो मेक पेयर बना के करना पड़ता, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट इक्वल टू मेक पेयर ऑफ दिस कॉमा दिस, तो ऐसे बन जाता है, कर्ली ब्रैकेट से क्या है तुरंत बन जाते हैं। So finally what I will do, I will return the answer. So let's run this code and see if this will work or not. As you can see it is working perfect. Let's submit this code. या वर्क बढ़िया कर रहा है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इजी अप्रोच टू डू दिस। So now let's discuss about the time and space complexity for this solution. So as you can see, we are traversing the whole array. So the time complexity will big O of n. We can't do anything in big O of n because we can't optimize lesser than the big O of n. But here the space complexity is big O of n because we are using the stack. But we can optimize this this solution. We can't do anything with the time complexity, but we can optimize the space complexity. But it's your task to optimize this because it's a very simple problem. It big O of n, it's a perfect problem. If interview will ask you to optimize this, so पहली बात तो है ना, ये मोनोटोनिक स्टैक यूज करना ही एक ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है, अलग लेवल का ऑप्टिमाइजेशन होता है मोनोटोनिक स्टैक यूज करना। बट अगर इसको ऑप्टिमाइज करना हो तो ये तुम्हारा टास्क है कि स्पेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें पढ़नी है कि कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वैसे बहुत सही सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा सही, बिकॉज मोनोटोनिक स्टैक यूज करना कोई हल्की बात नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से। So yeah, this was a complete solution. If you find this helpful, then please like, share, and subscribe, and we will meet in next video. Bye.